आज पहुंचे हैं इलाहाबाद में महाराजा अग्रसेन धर्मशाला इलाहाबाद नो रोड। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय युवा विकास सम्मेलन 3 हो रहा है। दिव्य युवा मंच हरियाणा की तरफ से यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय युवा विकास सम्मेलन 3। सिर्फ मान लेते कि हम कर लेंगे, so you have to search that skill, particular skill. You have to grab that particular skill. First S, smile. Second S, skill. And the third S will make you a star. Believe me. The third S will make you a star. Smile, skill, and then become a star. That आप देख रहे हैं सरदार न्यूज़। मैं हूं प्रविंदर सिंह। amazingly better, believe me, trust me. So our work at Skill Minds Foundation is to define that, to identify the children, those children who are in slum area who are not getting quality education. We identify them, we give them quality education at our centers. The second, we do with set platform, we provide skills to the youth who needs job or who needs a platform where they can provide entrepreneurship, they can start their journey in entrepreneurship. So हम लोग वहाँ पे उसको स्किल प्रोवाइड करते हैं या फिर रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्किल के विशेष के लिए क्या तुम ठहर पाओगे अपने उद्देश्य के लिए? पूछने लायक सवाल है। वक्त यहाँ ठहरता नहीं किसी विशेष के लिए, क्या तुम ठहर पाओगे अपने उद्देश्य के लिए? पहचान अपने आप को, निकाल मन से पाप को, पहचान अपने आप को, निकाल मन से पाप को, उस उद्देश्य को पाने को सिर्फ तू बना है। जी ले जी भर के दोस्त दिन अपना है, जी ले जी भर के दोस्त दिन अपना है। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन vipulsaran.com, skillminds.org एंड स्किल माइंड्स फाउंडेशन सर्च किया। और मुझसे मिलने के लिए मिलिए, मेरे पास कार्ड से मैं आपको। थैंक यू वेरी मच। სოფელ ყელცეული საჯარო სკოლის დირექტორი. ამჟამად ვარ ამავე სკოლის მათემატიკისა და ჭადრაკის მასწავლებელი. I am Marina Tabataze from Georgia, senior teacher from Georgia. For 22 years, I was the school director in the public school of Qeltseuli village of Gori municipality named Arta Utarcheidze community. I teach mathematics and chess at Arabulma Afrikanasreba termini, რომელიც გამოიყენება ფორმალური ეროვნული სასწავლებელი მიღმა განათლებისთვის, რომლის ამოცანაა ბავშვებისა და მოზარდების განვითარებაზე ზრუნვა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მოზარდების სხვადასხვა მიმართულებით მათთვის სხვადასხვა საჭირო უნარებისა და
ესების მიწოდება. კომპეტენციები ბუნებრივ გარემოში ინდივიდის პოტენციალის გახსნა და მათი ჰორიზონტის გაფართოება. იუნესკო განსაზღვრავს არაფორმალურ განათლებას, როგორც განათლებას, რომელიც არის ინსტიტუციონალისტური, აქვს მიზნები და გეგმა განათლების მიმწოდebლის მიერ შემუშავებული. არაფორმალური განათლების დამახასიათებელი მახასიათებელია, რომ მას აქვს დამატებითი, ალტერნატიული და შემავსებელი ფუნქცია ფორმალურ განათლებასთან. ჩვენ სკოლას აქვს ასეთი ტრადიცია, რომ ფორმალური და არაფორმალური განათლება ერთობლივად იძლევა შედეგს მრავალწლიანი მოღვაწეობის საერთაშორისო ტურისტების 2/3 ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობს, რომლის წილად მეტია ამერიკა 20%, აღმოსავლეთ და აზიის ქვეყნებში, წყნარი ოკეანის ქვეყნებში მოდის 10%, აფრიკის ქვეყნებზე 3%. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან დიდი განვითარება აქვს და მომავალი ტურიზმის. წლის ყოველ სეზონზე ჩვენი 14 რეგიონი დატვირთულია სხვადასხვა ტურისტული სასამსურებით, ასე ვთქვათ, მეგზურებით და თქვენ შეძლებთ საქართველოს बताते हैं तो कहते हैं नमक मिर्च लगा के उसे और बड़ा कर देते, तो वो जो दुख होता उसको बड़ा। तो ये जो प्रोग्राम है आज इसके अंदर क्या है कि हमारी जर्नी कैसे रहती है, हम किस तरह से अपने आप को बदल सकते हैं, किस तरह से समाज को एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ लेके जा सकते हैं। कि नेगेटिव तो सब लेके जाते हैं, लेकिन सब आप उसे चेंज कैसे कर सकते हो, उनमें अपना चेंजिंग पावर कैसे ला सकते हैं। जैसे कि हमने छोटे छोटे से आर्टिकल्स भी लिखे थे, लोग हमारे कुछ आर्टिकल्स के खिलाफ भी रहते हैं कि मैडम आप जो भी लिखती हैं महिलाओं के खिलाफ लिखती हैं, या हमने जैसे कि एक आर्टिकल लिखा था नारी ही नारी के अस्तित्व पर भारी। 100% शायद यहाँ हो तो मानते होंगी, जब भी महिलाएं होती हैं, 4 महिलाएं एक साथ होगी तो अपनी टांग खिंचाई करेगी, वो कभी आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करती हैं। इसके साथ ही कानून के आड़ में उजड़ते रिश्ते। आज संविधान ने महिलाओं को इतने कानून दिए हैं, इतने उनके रूप में आरक्षण, पुरुष इस चीज को डिजर्व करते हैं, उनके लिए एक ये समस्या क्रिएट हो गई है। भगवान ने हमें अपनी थाली से अपनी हमारे ये डिजर्व करते हैं। आज जैसे इस मंच को ये मंच एक चीज नहीं है, लोगों को अपने स्कूल या अपने घर परिवार में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। आज यहाँ तक हमें मौका मिला है, तो क्यों मिला है ये मौका? आसान नहीं होता ये मौका मिलना, लेकिन ये मौका मिला है। जब अपने कुछ देखते रामायण में अगर देखा हो तो सीता मैया को वनवास रहना पड़ा था। वनवास के अंदर क्यों रहना पड़ा? वनवास तो श्री राम को हुआ था, फिर सीता ने वनवास क्यों भुगता? वह जनक नंदिनी थी और ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी जो सोने के पलंग में वो सोती थी और हीरे जवाहरात से जड़े गहने पहना करती थी, पर उन्हें भी जंगल देखना पड़ा। एक पल में अपना राज परिवार सब कुछ छोड़कर उन्हें वहां जाना पड़ा। तो क्या अपना दुख उनसे दुख से कम है या उनके दुख से ज्यादा है? सब लोग हिंदी में बात करें, हम भी हिंदी में बात करें। हमारे नेशनलिटी भाषा तो नेपाली है, इसलिए सबसे पहले नेपाली से शुरू करूँगा, उसके बाद ही आप हिंदी भाषा को प्रयोग करना चाहता हूँ। उसके बाद इंग्लिश भी होता है,
लोग हिंदी हैं इसलिए आ गया। Respected guest and speaker and delegate from the different country and different states. To everyone, namaste and good afternoon. तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आफ्नो हृदयदेखि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एवं यस कार्यक्रममा मैले पार्टिसिपेट हुन पाउँदा, यस कार्यक्रममा मैले अपना 2-4 शब्दहरू राख्न पाउँदा म धेरै हर्षित छु, खुसी उत्साह छु। बट हम लोग ज़्यादातर हिंदी भाषा समझ रहे हैं और इंग्लिश भाषा समझ, इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में ही अपना जो वर्ड है देना चाहता हूँ। बीच बीच में हिंदी बोलता रहूँगा और नेपाली भी बोलता रहूँगा। और नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज रंजित शर्मा फ्रॉम नेपाल, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्ध एंड माता सीता। आई एम television and I am a editor of Rashtrani Traditional Newspaper, and I am also CEO and founder of AJR Garment Private Limited and Nepal Jobbing and Training Center. I also work in the youth related programs and child rights sectors. Firstly, I will congratulate and express my gratitude to Divya Yuva Manch and founder of this organization, Mr. Subhash Chauhan, for creating this historical program in the Allahabad, Haryana, which is the land of Sri Krishna. मैं पेशा से जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं अपना जर्नलिस्ट के अपना अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ आपको समझ से। एक जर्नलिस्ट वर्ड ही एक अपने में एक बहुत बड़ा वर्ड होता है और एक बहुत कष्टकर। Reconciliation and understanding are what the youth need to do in international relations. We always meet and talk at such events. Not only that, each one of our country's leaders makes many such gatherings in reconciliation, peace solution regarding the reconciliation. But what we do find in this, never before in the human history have find solutions not implement for the contradicting. Do you agree with me? So not well. That is your opinion. I would say that everywhere in the world, in the name of reconciliation, is only magic happen. So what is the purpose of quarrel in many places even now? After much talk about reconciliation, ethnic, religious, cultural, color, physical, resource and aggressive activities take place very openly and covertly all over the world. We the is known well. I think the time is given for me has expired. I will conclude my speech to my heartiest congratulations to my long friend, Mr. Subhash Chauhan and Divya Yuva organization. Such important event for this generation. All Christ to God, thanks to all of you, and thanks to God. Thank you very much. साथियों को आप मेरे गेटअप से ही समझ गए होइएगा कि मैं किस विषय पर बोलने जा रहा हूं और मैं क्या संदेश आप लोग को देने जा रहा हूं। क्योंकि अपने लिए तो सब जीता है, कुछ ऐसा करो जिससे दूसरे को भी फायदा हो। जैसे अगर पेड़ पौधा अगर लगाएंगे तो उससे जो प्राणवायु ऑक्सीजन निकलेगी वो तो सब लेंगे, वो तो सिर्फ सुजीत तो नहीं लेगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं प्रकाश डालूंगा, पहले थोड़ा पास्ट में, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। पास्ट में मैं स्टार्ट करूंगा कि मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरी माँ जब स्कूल में जैसे स्कूल की वार्षिक परीक्षा होती है तो उसमें दिया जाता है हस्तकला की एक परीक्षा होती है। तो हस्तकला में कुछ बना के दिया जाता है, लेकिन जनरली जो हमारे क्लास के जो बच्चे थे
वह परचेज करके और दे देते थे। क्योंकि परचेज किया हुआ सामान वो अच्छा रहता था दुकान से, तो उसका स्टेटस न घट जाए, इसलिए वो मैक्सिमम लोग परचेज करके देते थे। लेकिन मेरे पास एक नारियल का पेड़ था, तो मेरी माँ कहती थी कि हस्तकला का मतलब होता है हाथ से बना के, उसके लिए तो हम सभी को जिम्मेवार होना चाहिए। हम लोग सरकार पर छोड़ देते हैं कि वो सरकार का काम है, या जैसे दिल्ली बहुत पोल्यूटेड माने सिटी में से काउंट होती है, लेकिन सब कोसता है और सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। उसके लिए हम सभी को जागरूक होना चाहिए। तो हम सभी का कर्तव्य है कि किसी भी ओकेजन पर या अपने जैसा कि आज देख रहे हैं आप, एक ऐलानाबाद की इस पावन धरा पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय दिव्य युवा मंच सम्मेलन चल रहा है। और ये कार्यक्रम एक छोटी सी चीज़ नहीं है। आज ऐलानाबाद शहर के अंदर विश्व पटल के प्रतिनिधि यहाँ पे अपना उद्बोधन दे रहे हैं, और इसके अलावा हमारे भारत देश से भी जगह जगह से सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवक एवं शिक्षाविद यहाँ पधारे हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ न कुछ किया है। समाज के लिए करना, अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन समाज के लिए करना ये आसान बात नहीं होती और हर किसी के बस की बात नहीं होती है ये सब काम करना। तो ये काम किया और इनको समाज विश्व पटल पे एक पहचान मिल रही है। आज दिव्या युवा मंच के संस्थापक श्रीमान सुभाष जी चौहान जी, आपने ये सब लोगों को इनवाइट किया है। ये आपका कोई निजी स्वार्थ या निजी सोच नहीं थी। आपने लोगों को कैसे मोटिवेट किए, कैसे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे समाज में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनको पहचान तो दे ही रहे हैं, इसके साथ उन कार्यों से दूसरे लोग भी आज प्रेरित हो रहे हैं। आज यहाँ इस बार जैसे 25 लोग आए हैं, 60 लोग आए या 200 लोग आए हैं, तो अगली बार ऐसे कार्यों को समाज के और लोग करें और इस कार्यक्रम को बड़ा करें, तो और लोग को मोटिवेशनल मिलने के लिए कार्यक्रम रखा जा रहा है। इतना आसान नहीं होता ये सफ़र तय करना। जो लीक से हटकर चलते हैं अक्सर ज़माने में अपने रास्ते वही बनाते हैं। जो लीक से चल रहे हैं वो परंपरा से चल रहे हैं। परंपराओं को निभाना गलत नहीं है, लेकिन परंपराओं को समय के साथ अपडेट होना ज़रूरी है। मोबाइल का वर्जन भी अगर लेते हैं वो भी पुराना हो जाता है, तो हमें अपडेट चाहिए। इसी तरह समाज के जो कार्य चल रहे हैं और अपन को समाज के साथ, युवा पीढ़ी के साथ चेंज होना पड़ता है। जब तक अपन चेंज नहीं होंगे, अपने विचारों को नहीं रखेंगे, नहीं चलता। तो आज ये कार्यक्रम विश्व पटल पे अपनी पहचान बनाने का, अपनी पहचान देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया गया है। बहुत शानदार कार्यक्रम है और ये 3 दिन का कार्यक्रम रहा है। कुछ लोग इसमें ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऑफलाइन जुड़े हुए हैं और कुछ यहाँ पे आज सारा विश्व पे ये चीज़ लाइव हो रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सुभाष जी चौहान जी और यहाँ पर आए हुए हैं सभी आउट ऑफ कंट्रीज़ के प्रतिनिधियों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे अजय इंडिया की तरफ से कि आप हमारे यहाँ इंडिया में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। थैंक यू। भाषा मानते हैं इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन कई बार भाषा को समझने से पहले भावों को समझना जरूरी है। भाषा मानते हैं कि तकलीफ में होती है, तो ये सोच के आ सकते हैं कि हम इंडिया जा रहे हैं तो क्या हम हिंदी भाषा को समझ पाएंगे, लेकिन वो जब यहाँ आ रहे हैं तो भाषा शायद इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है अगर विचार समझ में आते हैं, भाव समझ में आते हैं। मैम आप कहाँ से आए हैं? अजमेर राजस्थान से टेलर। समाज के लिए जो भी हमसे बन पड़ता है, हम समाज के लिए ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसमें जैसे भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव रहता है तो कोशिश करते हैं कि हम कैसे करके बच्चों को या उस संस्था को जो भी हो सकता है वो किसी भी माध्यम से जैसे पहुंचाया जाए। जैसे खिलाड़ी होते हैं उनके पास अपने खेलने के सामान नहीं होते हैं, तो हम किसी भी माध्यम से उनको सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ ही कोरोना के दौरान हमें ये प्रेरणा मिली थी, क्योंकि हम खुद कैंसर पेशेंट हैं, तो कोरोना के दौरान हमें ये प्रेरणा मिली कि कभी हमारी मदद किसी ने की थी, तो हमने इसी बात को सोचते हुए कोरोना में लगभग 30,000 से ज़्यादा मास्क बना के निःशुल्क आम पब्लिक को, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे प्राइवेट हो या आम पब्लिक हो, सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है।
और ये लगभग हमारा कुछ न कुछ चलता रहता है। हरियाणा में पहला इवेंट है आपका कि पहले भी इससे पहले भी कहीं? नहीं, हरियाणा में हमारा पहला इवेंट है। इसके अलावा लगभग हमें 100 से 150 अवार्ड हमें मिल चुके हैं। हमारे किशनगढ़ के जैसे एमएलए हैं, इसके अलावा सांसद हैं, सरकारी सारी संस्थाएं हैं, एसडीएम ऑफिस है, और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इनसे सबसे हमें सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही कबीर कोहिनूर अवार्ड अभी 27 फरवरी 2024 को मिला था। इसके साथ ही राजस्थान राज्यपाल द्वारा कलराजी मिश्र द्वारा हमें सामाजिक सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया है। इस ईश्वर की देन है कि हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है और हम ईश्वर के ऋणी हैं। यूनाइटेड IVDC के कार्यक्रम चल रहे हैं गढ़वाल धर्मशाला में, उसके आए 3 दिनों का ये कार्यक्रम है, उसके बारे में बताइए। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने इस धरती को बचाने के लिए कुछ गोल सेट किए हुए हैं। उन गोल को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग फील्ड के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, समाज सेवा के फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उन सबको हमने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया था। और हमारे एक छोटे से बुलावे पे 10 दुनिया के अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 70 डेलीगेट यहाँ पर परसों से रुके हुए हैं और अपने अपने जो फील्ड के जो उनके काम करने के जो आइडियाज़ हैं और उनके काम करने के जो इम्पैक्ट है, और एक दूसरे से आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं और अपने अपने जो अनुभव है वो बताए जा रहे हैं। आज शाम को रात को 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद में कल हम लोग जाएंगे फील्ड विजिट में। जो यहाँ पर इस एरिया में जो सेवा के काम चल रहे हैं वो उन लोगों को हम दिखाएंगे। जैसे हरप्रभ आश्रम है, जो ताराबाई कुटिया है, डेरा सत्ता सौदा है और जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, इन सब की हम कल इनकी विजिट करवाएंगे और उसके बाद में ये सब लोग अपने अपने देश पे चले जाएंगे। ये पर जैसे कार्यक्रम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, तो इसके बारे में आप? देखिए, एलनाबाद एक जगह है खाली, स्टेज बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेज है, जहाँ पर 10 देशों के लोग अपने विचार रख रहे हैं। वो एलनाबाद लेवल का नहीं है, ये इंटरनेशनल है। और आप ने बाकी लोगों से भी उनके विचार जाने होंगे। अगर एलनाबाद लेवल का ये होता तो सिर्फ ये एलनाबाद के ही लोग यहाँ पर होते और एलनाबाद के बारे में ही बात करते। ये दुनिया के 10 देशों के लोग हैं, वो दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये छोटा स्टेज नहीं है। मैं 1 बाय 1 नेम अनाउंस करूंगी, आप स्टेज पर आते जाना। नाउ द सेकंड वन इज नीरजा। आफ्टर रिंकू मिस ज्योति, मिस अनुराधा, मिस सुमन, और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी भ्राता भरत भूषण जी से कि वो एक बार स्टेज पर आए। भूषण जी, tomorrow you will visit to Silsa, Tara Baba Kutia. Then on the way in Rania, there is a Brahma Kumari center, our very large, wonderful center. So we have given cordial invitation to Brother Subhash that all delegates are welcome there at 10 a.m. to take breakfast as well as lunch, brunch. All of you are welcome there. Our sister
Kamlesh Didi and all will welcome. Thank you very much. थैंक यू सरदार न्यूज़। ये दिव्या यूथ मंच द्वारा आयोजित इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव पार्ट 3 में हम नेपाल से आए हैं। फ़िलहाल हम 7 लोग साथ में आए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हम BSc एग्रीकल्चर। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। ये यूथ को डेवलपमेंट मोटिवेशन इन्फ्लुएंस करता है ये प्रोग्राम। थैंक यू। नमस्कार, सरदार न्यूज ये यहाँ का लोकल न्यूज़ है ना। हाँ, सरदार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बाइट लेने के लिए आया है। मैं बिहार से अमित कुशवाहा ख्वाब फाउंडेशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, जो कि सुभाष जी के निमंत्रण पे IYDC के तीसरे साल के में आया हूँ और यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है जब बाहर के बहुत सारे देश के लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, बैठ के बातें करते हैं और कुछ नए सीखने को मिलती है। तो इसके लिए सुभाष जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे प्रोग्राम करते रहे, फिर हम लोग आते रहेंगे, उसके लिए शुभकामनाएं। सरदार न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सरदार न्यूज़ जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। हम लोग आए हुए हैं हरियाणा के सिरसा एलानाबाद में और यहाँ पे एक सुभाष चौहान जी का एक कार्यक्रम है जिसमें हम लोग भाग लेने आए हुए हैं बिहार से। अब बहुत अच्छा लगा और खूबसूरत शहर है एलानाबाद, बहुत ही अच्छा लगा हम लोग आए थे। सरदार न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं। मैं सुजीत कुमार सीतामढ़ी बिहार से ट्री मैन के नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। पर्यावरण पर मैं काम करता हूं। नगर निगम सीतामढ़ी के मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं। एक्चुअली मैं अभी एलनाबाद में था। एलनाबाद में दिव्य युवा मंच के सौजन्य से एक प्रोग्राम हो रही है इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉन्क्लेव सीजन 3 हो रहा है, उसमें मैं आमंत्रित था। तो ये यहाँ पे ये सरदार जी मिले और पर्यावरण पर मैं काम करता हूँ। मेरा गेटअप देख के, मेरा गेटअप में ऊपर टोपी में लिखा था सांसें हो रही है कम आओ पेड़ लगाए हम, तो मैं इसी को देख के इन्होंने प्रभावित हुआ और हमको कहें कि पर्यावरण पर 2 शब्द आप बोलिए, 2 संदेश जो देना चाहते वो दीजिए। तो आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप भी अपने जन्मदिन हो, शादी के सालगिरह हो या कोई भी शुभ अवसर हो, उस पर आप प्लांट लगाइए और दूसरे को भी लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो इसी शब्द के साथ मैं जितने भी देख रहे हैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा कि इससे पर्यावरण की जो दिन प्रतिदिन समस्याएं हो रही है वो कम होगी। क्योंकि प्लांट लगाना सिर्फ सरकारी की जिम्मेवारी नहीं है, हम सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम लोग प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे पोल्यूशन की जो समस्याएं हो रही है वह कम हो सके। तो ये भी एक प्रकार है जो आप प्लांट लगा के कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और भी जैसे हिंदू धर्म में बेटी की शादी होती है तो उसमें 5 प्रकार का फल दिया जाता है, तो आप 5 प्रकार के फल के साथ 5 प्रकार का प्लांट भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। क्योंकि शादी विवाह में तो बेटी और दामाद तो बिजी रहते तो वो फल खा नहीं पाते होंगे, लेकिन अगर 5 प्रकार का पौधा भी देंगे तो उसको जब वो रोपेंगे उससे जो होने वाला फल होगा उसको आपके बेटी दामाद भी खाएंगे और नाती नतनी भी खाएंगे। तो ये संदेश मैं आप सभी को देना चाहता हूँ और आपसे आग्रह भी करता हूं कि आप कमिटमेंट कीजिए खुद से और किसी भी ओकेजन पर आप प्लांट लगाइए और दूसरे को भी प्रेरित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं सेवा मनोभाव से, उनसे आग्रह करूँगा। मैं पर्सनल भी इन्वाइटेशन दूंगा। थोड़े दिनों बाद ही दिल्ली में भी हम लोग इस विषय पे एक चर्चा करेंगे, तो आप लोगों को भी आना पड़ेगा। और आसाम में भी ऐसा ही है कि इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। नवंबर में शायद होगा काजीरंगा के पास। आप लोगों का मालूम ही होगा क्योंकि जो 1 हॉर्न राइनो है वो ज़्यादातर लगभग 90% 1 हॉर्न राइनो असम में मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसके पास ही हम ऑर्गेनाइज करने के लिए कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मेरा जो थोड़ा बहुत बोलने का कोशिश किया, इसमें अगर कोई गलती हो गया है तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। We are all here because of the youth, and one thing you need to know about the youth is very important for the future. We mostly concentrate on the young people, on the older people right now,
because we feel like they can actually do everything for us. But when we don't concentrate on the youth, they actually get misleaded and go out of the way. And when they go out of the way, they mostly get distracted and start doing other things. So I actually encourage every adult to actually just look up to the youth and just talk to them and just tell them that they are very important for the future, and we should encourage them to do better, and we should actually just understand them and encourage them to do better, because they are actually needed. They are our future doctors, our future presidents, our future teachers, and future models and all. So we have to encourage them, talk to them, help them, make them understand that they are very important. Thank you. Okay, and mediator at Supreme Court of India. और मैं अपने कैरियर में सब कुछ पाने के बाद मुझे लगा कि आई शुड पे बैक टू द सोसाइटी। तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि लीगल प्रोफेशन आज बिकम सो कॉस्टली। तो मुझे लगा कुछ मुझे करना चाहिए सोसाइटी के लिए, स्पेसिफिक मार्जिनलाइज लोगों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो दैट माई मोटो हैज़ बिकम कि द लॉ शुड रीच टू द डोर स्टेप ऑफ एवरी कॉमन पीपल। तो इसीलिए मैंने अभी एक स्कीम मेरी चल रहा है, दैट इज़ पैन इंडिया, कि एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 to 2 o'clock मैं फिर टेलीफोनिक लीगल एडवाइस करती हूँ थ्रू आउट इंडिया में। अगर किसी को कुछ से पूछना हो तो टेलीफोनिक लीगल एडवाइस करती हूँ। और इवन वर्किंग डे में भी मैं 2 बजे के बाद कॉल्स ले लेती हूँ, क्योंकि हर कोई वेट नहीं करेगा सैटरडे के लिए, उसको कोई प्रॉब्लम हो, एकदम से कोई प्रॉब्लम हो, वो वेट नहीं करेगा। तो मैं उनको बोलती हूँ मुझे 2 बजे के बाद कॉल कर लीजिए। तो 2 बजे बाद कॉल करता तो उनको मैंने प्रॉब्लम सॉल्व। डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो लॉयर हायर कर लेते हैं अपना, जैसे क्यों उनको मतलब मेरी नंबर ले लेते हैं, उनके पास पहुंच जाता है। तो उनको मैं कोशिश करती हूँ, सबसे पहले काउंसलिंग करती हूँ, और काउंसलिंग के बाद अगर बात नहीं बनी तो एक प्री लिटिगेशन मीडिएशन करती हूँ। दिस इज़ वेरी न्यू कंसेप्ट, क्योंकि पहले हमारा तो मीडिएशन है, मीडिएशन इवन आजकल हम ऑनलाइन भी करते हैं, क्योंकि हम फिजिकल खतरे में नहीं जा पाते। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि ऑनलाइन मीडिएशन स्टार्ट करें। दिल्ली में या फिर दिल्ली के आसपास एरिया में हम लोग फिजिकल चेक कर लेते हैं, बट थ्रू आउट इंडिया में कोशिश करते हैं ऑनलाइन मीडिएशन करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बस हमारा यही कोशिश रहता है कि लोग कोर्ट तक ना जाए, बस यही छोटी सी मेरी कोशिश है, और बस इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी। राम राम सर, राम राम मेहलानाबाद। अभी मैंने सुबह से, इनफैक्ट कल से इतने सारे लोगों को सुना जिन्होंने मतलब समा बांध दिया। Amazing speeches by the great leaders out here who could promote what they are doing. But this is not actually everybody could speak their heart. Everybody cannot promote what they are doing. So promote when things get tough or when the life gets tough. There is always a scope of life.
दिमाग में एक आज़ादी हो जो मेल और फीमेल में कोई भी डिफ्रेंशिएशन ना करे। और जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं वो है दीपी। नमस्कार, हम रंजित शर्मा नेपाल से हैं और अभी हम भारत के हरियाणा राज्य के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो अभी अंतर्राष्ट्रीय युवा विकास सम्मेलन वो तीसरा हो रहा है, अभी इसमें पार्टिसिपेट करके काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके कार्यक्रम में आके, क्योंकि ये कार्यक्रम ये प्रोग्राम यूथ रिलेटेड है, युवा के संग संबंधित, युवा कैसे काम करते हैं, युवा का विचार क्या हो रहा है, और विभिन्न बैकग्राउंड से, विभिन्न स्टेट से, विभिन्न कंट्री से यहाँ पे युवा सब आए हुए हैं और अपना अपना जो शेयरिंग पार्ट है, कैसे काम कर रहे हैं अपने देश में और कैसे एसडीजी गोल को अचीव करने के लिए अपने अपने तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को, उनके सब प्रयास को यहाँ पे एक मंच दिया जा रहा है और उस मंच पे अपना अपना बातें रख रहे हैं और हम लोग भी उसको सीख रहे हैं और अपने तरीके से कैसे उस अपने देश में, अपने राज्य में कैसे कर सकते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग एसडीजी गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं, इस बारे में इस मेन थीम है और इस हिसाब से प्रोग्राम का हिसाब से काम चल रहा है और इस हिसाब से हम लोग भी काम कर रहे हैं। ख्वाब फाउंडेशन में हम छोटे बच्चे को, जो कि शेड्यूल बस्ती है, दलित बस्ती है, अंतिम जन है, जहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, सरकार देता है, समाज भी लोग गलत निगाहों से देखते हैं, उन्हें हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दलित बस्ती में हमारे काफ़ी छोटे चलते हैं, जहाँ पे हम बच्चे को स्टडी मटेरियल, फूड मटेरियल, ड्रेस मटेरियल, ये सब अपने फंड से प्रोवाइड करते हैं। ख्वाब फाउंडेशन जो हमारा 2011 में 29 मार्च को स्थापित हुआ था, ऐसे हम इस काम को इस संस्था के चेयरमैन मुन्ना कुमार हैं, जो पिछले 5 साल से अपने हिंदुस्तान में कर रहे हैं। डॉक्टर कलाम साहब के पुण्यतिथि पर 27, 28, 29 जुलाई को हम लोग करते हैं, जो कि पिछले 5 साल से लगातार हिंदुस्तान में हो रही है। अभी आने वाले समय में ये प्रोग्राम हम लोग काठमांडू में करने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग देश के प्रतिनिधि आते हैं, जैसे कि यहाँ बैठे हुए ऐसे वहाँ भी 12-13-18 कंट्री के प्रतिनिधि आते हैं और अपने अपने बातों को मंच पर रखते हैं। तो मैं मौका देना, यहाँ इलाहाबाद में सुभाष जी ने, और दूसरी बार हम लोग आए भी हैं हमारे संस्था से, मैं, अमित कुशवाहा, कादिर जिलानी जी, दीपिका, ये लोग बिहार से चल के आए हैं, साथ ही बिहार से हमारे नाज भाई है, विपुल भैया है। तो हमेशा हम लोग आगे भी आते रहेंगे यहाँ पे सुभाष जी के तरीके से वो करते हैं। मैं पिछले साल भी आया था, अभी भी आया हूँ, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे आने वाले समय में जितना भी सीरीज इसका चलेगा IYDC का, हम कोशिश जरूर करेंगे कि पूरे टीम के साथ हमेशा हम आए और सुभाष भैया का हॉस्पिटैलिटी का मजा लें और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है, जो हम सीखें और जाए। तो हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि जुलाई में जो हमारा प्रोग्राम कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, जैसा कि अभी अनाउंस किया मैम ने कि मेरा नाम शांति पासवान है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं आर्ट एंड क्राफ्ट कंसल्टेंट हूँ। मैं अपना NGO का हमारा एक छोटा NGO है, उसमें मैं सेक्रेटरी हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो हमारे घर का जो वेस्ट मटीरियल है ना, जो बाद में उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट करती हूँ। तो बहुत आसान है लोगों को सिखाना, ये ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि जो महिला हमारी ज्वेलरी देखती है, अपसाइकिल ज्वेलरी, वो ज्वेलरी में देख के वो सोचती कि नहीं मैं नहीं कर सकती। तो मैं कहती हूँ आपको 2 स्टिच, ज़्यादा स्टिच नहीं सीखने, एक कच्चा जिससे हम गुदड़ी बनाते हैं, जो सबके घरों में बनाई जाती है, और एक होता है काज जिसमें हम बटन, सिर्फ 2 टाँके पर मैं काम करती हूँ। उसी 2 टाँके पर मैं इतनी ज्वेलरी बनाती हूँ कि मैं एग्जीबिशन लगाती हूँ दिल्ली हाट में, 10 स्टार में, और जो महिला मेरे पास काम सीखने आती है उनके साथ मेरे को बहुत, उनके साथ काउंसलिंग, उनकी फैमिली प्लानिंग, फैमिली की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती हैं वो। तो उनके कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि ज़िंदगी को टैकल कैसे करना है और दूसरे की ज़िंदगी को हमने टैकल कैसे करवाना है। मेन होता है ये, ठीक है सब परेशान होते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है,
जब तक फूड